सर So the module is Mn. The phase width is b by cos psi. In the normal direction, the phase width is b by cos psi. है ना? देखो इस पर के केस में यदि ये phase width है, when teeth is inclined, so this will be b by cos psi. Initially it is b, but it is b by cos psi. This is the phase width. Inclined हो जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. So the phase width is b by cos psi. After that, sigma b is a material property, no change. Then there is a tooth factor y. So this tooth factor will be for virtual gear. b by cos psi कैसे है? देखो, this is b. Now this is inclined. This is b. This is angle psi. So if this is b, this is angle psi, then this will be b by cos psi by trigonometry. So phase width is b by cos psi, sigma b and y. Y is the virtual number of teeth. अभी इस पर बात करेंगे कि virtual क्या है. तो ये हमारी बीम स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में है? नॉर्मल डायरेक्शन में. अब इसका कंपोनेंट यदि हम लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट होगा SBN cos psi, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना? So SB equal to SBN cos psi, ये होगा. अब देखो, ये cos psi को इसमें इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो SBN cos psi will be MNB sigma b y. MNB sigma y. So this is SB. So this is the beam strength in the tangential direction that I have written over here. SB is the beam strength in tangential direction. जब भी हम गियर डिजाइन करेंगे तो हम tangential direction में ही बात करेंगे, ठीक है? Because the teeth are inclined, so first beam strength is calculated in normal direction, then the component is found out in the tangential direction. ठीक है? तो ये थोड़ा सा एक आइडिया beam strength का हो गया. अब आते हैं wear strength, SW. So wear strength in case of small gear is VQ dpk. Yes sir. ये फॉर्मूला था? Yes sir. Now we will again calculate SW in normal direction. First, SW in normal direction, then we will find the component in tangential direction. Similarly, let's first calculate SWN. So SWN is given by, और the helical gear की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ बता देता हूँ. SWN फॉर्मूला यही रहेगा. So in place of B, I will write b by cos psi because phase width had changed. So in place of b, I will write b by cos psi. Q is the ratio factor. Q is the ratio factor. Divided by ZP plus ZP is the ratio factor for external gears. It is minus for internal gears. 2ZD upon ZD plus ZD. ठीक है? In spur gear, these are fixed. There is no virtual thing. But in case of helical gear, there is a virtual gear. Virtual gear में मैं बात करने वाला हूँ, डेरिवेशन करने वाला हूँ. तो यहाँ virtual gear है और actual gear है. तो actual gear पे जो teeth है, वो तो है ZP और ZD. Actual gear पर जो teeth है, actual pinion, actual gear. अब जो imaginary gear है, उस पर जो teeth है, ZP dash, ZP dash. वर्चुअल pinion है, वर्चुअल गियर. Teeth are inclined, that's why उसमें कुछ ऐसी कैलकुलेशन आएगी कि वर्चुअल pinion वर्चुअल गियर के साथ मैच में किया कैलकुलेशन पर्पस से. ठीक है? तो हमारी टीम क्या होगा? ZP dash, ZP dash. तो इस केस में हमारा रेशियो फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? 2ZG dash divided by ZP dash plus ZP dash. ठीक है? ZG dash ये हमारा रेशियो फैक्टर किसके लिए हो जाएगा? वर्चुअल गियर के लिए. अब यहाँ पर ZP और ZP डैश में एक रिलेशन होती है, जिसको भी हम प्रूफ करेंगे, आज डिराइव करेंगे. ZP डैश और ZP में एक रिलेशन है, ZP डिवाइडेड बाय cos क्यूब psi. ZP डैश
और ZP में रिलेशन है ZP by cos क्यूब साइन, इसको भी प्रूव करेंगे। सिमिलरली ZG डैश और ZG में रिलेशन है ZG by cos क्यूब साइन, ठीक है। तो यदि हम इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे तो cos क्यूब साइन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो कुल मिला के यही आ जाएगी 2ZG डिवाइड बाय ZG प्लस। इसका मतलब रेशियो फैक्टर को चाहे हम वर्चुअल गियर के लिए कैलकुलेट करें या एक्चुअल गियर के लिए कैलकुलेट करें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि cos क्यूब साइन का टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो हम निकाल रहे थे वियर स्ट्रेंथ। तो वियर स्ट्रेंथ में b बाई cos साइन को हमने रख दिया किसकी जगह पर, b की जगह पर। q में तो कोई चेंज आया नहीं, एक्चुअल गियर के लिए निकालो चाहे वर्चुअल गियर के लिए निकालो, ठीक है। तो q की जगह पर q रहेगा, नो चेंज। हेलिकल में भी कोई चेंज नहीं है। उसके बाद आता है डायमीटर ऑफ दी पिनियन। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ दी वर्चुअल पिनियन लेना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ दी वर्चुअल पिनियन। तो वर्चुअल पिनियन का जो डायमीटर होगा वो होगा dp डैश, वो क्या होगा dp डैश, ठीक है। अब dp डैश और dp में क्या रिलेशन है, हाँ, तो dp डैश और dp में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन आएगी dp बाई cos स्क्वायर साइन इनटू, ठीक है। अब यहाँ कितना टर्म हो गया, cos साइन और cos स्क्वायर साइन क्या हो गया, cos स्क्वायर साइन हो गया। तो ये हमारी वियर स्ट्रेंथ इन नॉर्मल डायरेक्शन। अब यदि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो cos साइन इधर पहुंच जाएगा, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा हो जाएगा SW इक्वल टू PQ dPk डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर साइन। तो देखो एस्पर के लिए तो ये फॉर्मूले हैं, हेलिकल के लिए ये फॉर्मूले डाटा बुक में गिवन है, अगेन बस थोड़ी सी समझ आनी चाहिए। यहाँ पर m की जगह mn हो जाएगा, बाकी चीजें सेम है। जो y हम कैलकुलेट करेंगे वो वर्चुअल गियर के लिए करेंगे, ठीक है। एवरीथिंग विल बी डन फॉर वर्चुअल गियर। SW में V2 dPk है, यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर साइन का टर्म आएगा बिकॉज़ तीन आर इंक्लाइंड, ठीक है। तो फार्मूला में हल्का हल्का चेंज है, करेक्ट। cos क्यूब आएगा SWN में, SWN में, लेकिन मैं बात कर रहा हूं SW की। तो SW क्या हो जाएगा, SWN cos साइन। तो cos साइन एक cos साइन कम हो जाएगा तो cos स्क्वायर साइन हो जाएगा। I think it is clear. Okay. हाँ, note down करिए। 2 equal to twice ZP dash upon ZP dash plus ZP dash. Note down करिए। अभी आ रहे हैं, प्रूफ करेंगे ना कब वर्चुअल और एक्चुअल दोनों को समझेंगे। Noted? Noted? चलो देखो, ये मान लीजिए पिनियन का पिच सर्किल है, क्या है ये पिनियन का पिच सर्किल डायमीटर, तो इसमें इस तरह से टीम करते जाते हैं। पिच का डायरेक्शन इससे होगा, पिच सर्किल फ्रॉम हियर, रैंडम सर्किल फ्रॉम हियर
ठीक है। तो यदि पिच सर्किल को आप लेंथ में देखेंगे तो वो एक तरह का क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्किल। तो क्रॉस सेक्शन तो हमें सर्कुलर दिखेगा, बट एक्चुअल में वो क्या है, सिलेंडर है। पिच सरफेस जो है वो क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। पिच सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो यदि मैं इस सर्किल का प्रोजेक्शन लूंगा तो मुझे एक सिलेंडर मिलेगा, इसकी डायमीटर बराबर होगा। सो दिस विल बी द सिलेंडर। पिच सरफेस किस फॉर्म में होगी, एक सिलेंडर के फॉर्म में। ठीक है। अब इस पिच सरफेस पर ही टीथ इंक्लाइंड हो गए। इस पर गियर में टीथ कैसा होता है, पिच सरफेस पे स्ट्रेट, और हेलिकल में वो क्या हो गया, है ना। तो एक तरह से ये मानो कि ये जो इंक्लाइंड लाइन है, ये इंक्लाइंड टीथ को रिप्रेजेंट कर रही है। पिच सरफेस पे ये जो है इंक्लाइंड टीथ को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। अब इस इंक्लाइंड टीथ का जो एंगल है वो कितना है, साई एंगल। तो जब इस सिलेंडर को यदि मैं इस पॉइंट पे कट कर दूं क्रॉस सेक्शन, और मेरा डायरेक्शन ऑफ व्यू इधर से हो नॉर्मल टू द टूथ प्रोफाइल, है ना, ये टूथ है। तो नॉर्मल डायरेक्शन से इनमें से देखूं तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ये मुझे कैसा दिखाई देगा, सर्कुलर या इलिप्स? इलिप्स दिखाई देगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग यदि आपने थोड़ी कंसेप्चुअल पढ़ी है तो हमें इलिप्स दिखाई देगा। ठीक है। If I am viewed from this direction, then this cross section will be appeared as ellipse, or ellipse will have some major axis and some minor axis. होगा? तो देखो मैं इसको जरा प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, रिपीट कर दूँगा। This is important part. मैं बताऊँ। दिखाना करेंगे। हमें ऐसी समझ में आएगा। देखो ये सिलेंड्रिकल सरफेस दिख रही है पेन की आपको, ठीक है। सिलेंडर, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। तो एक तो व्यू मैंने बना दिया ये सर्कुलर, इसका क्रॉस सेक्शन बना दिया, सिर्फ ये सर्कुलर पार्ट दिख रहा है। ठीक है। अब यदि मैं ऊपर से देखूंगा इसे तो मुझे एक रेक्टेंगल दिखेगा, ये रेक्टेंगल दिखेगा। इसको मैं यदि सीधा काटता हूं तो मुझे सर्कुलर सेक्शन ही मिलेगा, लेकिन यदि मैं इसे टेढ़ा काटता हूं तो मुझे एक इलिप्स मिलेगा। इसको यदि मैं टेढ़ा काटता हूं तो मुझे एक इलिप्स मिलेगा। तो इस तरह से टीथ इंक्लाइन होने की वजह से डायरेक्शन ऑफ व्यू ये है, तो इधर से देखने में ये इलिप्स दिखाई देगा, ये आपको एज ए इलिप्स दिखाई देगा। सो दिस इज द इलिप्स। ठीक है। अब इस इलिप्स का एक होगा मेजर एक्सिस, ये तो आपका एम है मेजर एक्सिस, और इसका एक होगा माइनर एक्सिस, उसकी वैल्यू होगी एम। तो मैं लिखता हूं यहां पे m इक्वल टू मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स एंड m इक्वल टू माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। ठीक है। अब इस मेजर एक्सिस की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ये वाली डिस्टेंस तो डायमीटर ऑफ द पिनियन है, बताओ डायमीटर ऑफ द पिनियन है, तो ये एंगल साई है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये ट्रिग्नोमेट्री से dy cos psi हो जाएगा। तो इसका जो मेजर एक्सिस है वो dy cos psi हो जाएगा, dy cos psi मेजर एक्सिस। ठीक है। और जो इसका माइनर एक्सिस होगा उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, सो दैट विल बी इक्वल टू d ओनली, दैट विल बी इक्वल टू d ओनली। वो तो पहले के बराबर ही है, केवल टेढ़ा होने से मेजर एक्सिस बढ़ गया है। ठीक है, माइनर एक्सिस उतना ही है। तो इधर से देखने में अब ये इलिप्स आया, तो अब हम इस इलिप्स पर वर्किंग करना बड़ा टिपिकल है। तो यहाँ पर कुछ अप्रोक्सीमेशन लेकर के हम ये मानते हैं कि यहाँ से एक कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर एक सेंटर है, और उस सेंटर से इस पॉइंट को छूता हुआ कोई एक सर्किल जा रहा है, बिल्कुल टच करता हुआ। इस इलिप्स की जो टॉप पेरिफेरी है उसको टच करता हुआ एक क्या जा रहा है, सर्किल जा रहा है, एंड दैट सर्किल इज ए वर्चुअल सर्किल। दैट सर्किल इज ए दैट
और वो सर्किल ही एक वर्चुअल गियर है, उस पर कितने टीथ हो सकते हैं वही हमारा उस डायरेक्शन में कैलकुलेशन का पार्ट है। अजम्पशन विद सम एरर, ठीक है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो नॉर्मल डायरेक्शन से देखने पे हमको एक सर्किल मिलता है। अब इस सर्किल की रेडियस क्या होगी? तो इस सर्किल की रेडियस के लिए आप मैथमेटिक्स में यदि कोई इलिप्स है, कोई भी इलिप्स है, उसका मान लीजिए मेजर एक्सिस 2a है, माइनर एक्सिस 2b है, तो इस सर्किल के टॉप पॉइंट को छूता हुआ यदि कोई सर्किल हमें निकालना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसकी रेडियस जो होती है वो होती है a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b। ये मैथमेटिक्स में आपको इलिप्स के चैप्टर में मिल जाएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द इलिप्स जो है वो क्या रहती है। तो उसका फॉर्मूला होता है मेजर हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस स्क्वायर, हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस, करेक्ट। तो इस वर्चुअल गियर का यदि मुझे रेडियस निकालना है तो मुझे इस मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। तो मैं इसका वर्चुअल गियर का रेडियस निकाल रहा हूं और उस रेडियस को मैं नाम दे रहा हूं आर ई, ई फॉर इलिप्स, ठीक है। इलिप्स की वजह से जो वर्चुअल गियर बन रहा है आर ई विल बी गिवन बाय ए स्क्वायर, ए क्या है? हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस, तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ द एम स्क्वायर। एम मेरा मेजर एक्सिस है, मेरा एक्चुअल मेजर एक्सिस एम है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स माइनर एक्सिस, हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? n by 2, ये लिखना पड़ेगा हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस। इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा m स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाउ मच? 4m। 4m। ठीक है, a स्क्वायर बाय 2b n by 2, सो n स्क्वायर बाय 4n, ये मुझे मिलेगा। अब n की वैल्यू क्या है? dy cos psi, n की वैल्यू क्या है? dy cos psi, और n की वैल्यू क्या है? d। जरा इसको पुट करिए और r की वैल्यू निकालिए, कितनी आती है सॉल्व करिए। dy 4 cos square d square dy 4 cos square। इसमें एक करेक्शन है, दिस इज नॉट ट्रू हियर, a स्क्वायर बाय b ओनली, इसको करेक्ट करिए। इन मैथमेटिक्स द फार्मूला फॉर re is a square by b only, so this 2 will not be here, so this will be only how much? m square by 2h। m square by 2। ये क्लियर हुआ यहाँ पर? This 2 is not there in the formula, by mistake we have written, so this is m square by 2n, so m square is d square, so d by 2 m is dy cos psi ना, so d square by cos square psi into 2d, so this will be d by 2 cos square psi। 2 cos square psi is the radius of the virtual circuit, radius of the virtual gear। virtual gear is also known as formative gear, उसको formative भी बोलते हैं, virtual भी बोलते हैं, ठीक है। now what is the diameter of that virtual gear? radius पता है तो diameter क्या होगा? double of that, so diameter of the virtual gear will be d by cos square psi, ठीक है। now this is the virtual gear, so how many teeth are there? इस virtual gear पर कितने teeth होंगे? तो diameter, teeth और मॉड्यूल है ना। अब ये कौन सी डायरेक्शन का मॉड्यूल है? नॉर्मल डायरेक्शन, सो मॉड्यूल विल बी mn, ठीक है। सो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? d इक्वल टू mz होता है, तो d की जगह तो de लिखें। अब हम वर्चुअल गियर के लिए लगा रहे हैं, वर्चुअल गियर फॉर वर्चुअल गियर नोट कर लेना, खाली जगह बस खत्म होने वाला है। फॉर वर्चुअल गियर, सो वर्चुअल गियर d इक्वल टू mz
So I will write DE equal to MN ZV for virtual teeth, ठीक है। D equal to MN Z, ये होगा। अब देखो DE को मैं क्या लिख सकता हूँ, dy cos स्क्वायर साइन, ये मैंने प्रूफ किया अभी। और MN को मैं क्या लिख सकता हूँ, M cos साइन और ZV। अब ये D को क्या लिखा जा सकता है, ये एक्चुअल डायमीटर है, सो एक्चुअल डायमीटर कैन बी रिटन एज MZ equal to MZ. So MZ by cos square psi equal to M cos psi into ZV. MM cancel out. MM. So ZV equal to Z by cos cube psi. Z by cos cube psi. This is the proof. जो मैंने अभी फॉर्मूला यूज किया था ना, Z dash equal to Z by cos cube psi. So that is the proof of that. कभी कभी ये प्रूफ एग्जाम में डेरिवेशन आ जाता है, प्रूफ दैट the teeth on the virtual gear is given by teeth on the actual gear divided by cos cube psi. ठीक है, मोटा मोटा क्लियर हुआ होगा कि जो पिच सरफेस है उसका क्रॉस सेक्शन एक इलिप्स है, ठीक है। उस इलिप्स की वजह से वर्चुअल गियर कंसेप्ट में आ रहा है, और उस वर्चुअल गियर में जो टीथ है वो ZD है, और उसकी वैल्यू एक्चुअल टीथ डिवाइड बाय cos cube psi के बराबर है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये नोट डाउन करिए पहले, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द टीथ ऑन द फॉर्मेटिव हेलिकल गियर इज गिवन बाय टीथ ऑन द एक्चुअल हेलिकल गियर डिवाइडेड बाय cos cube psi। हैं, वर्चुअल गियर का हम इसलिए निकाल रहे हैं कि बिकॉज टीथ आर इंक्लाइंड, तो टीथ की जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, ठीक है। नॉर्मल डायरेक्शन से यदि डिलीट करें तो फिर कोई डिलीट से, ठीक है। अब इलिप्स पे टीथ की कैलकुलेशन इज वेरी डिफिकल्ट, काम एक्चुअल टीथ का होता है, वहां पे आपको पॉइंट कांटेक्ट मिलता है। अब वर्चुअल गियर को एक तरह का इस पर गियर बन गया, हाँ, तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने हेलिकल गियर को इस पर गियर में लिखा, हाँ उसे छूता हुआ टच करता है, ड्रॉप सरफेस। नोटेड? यस सर। हाँ, अब देखो डायनामिक लोड को कैलकुलेट करने की कितनी मेथड थी इस पर गियर में? दो थी, एक का नाम था वेलोसिटी फैक्टर मेथड और दूसरी का अर्ली बकिंघम, दो ही थी। यहां पर भी दो मेथड रहेंगी, एक वेलोसिटी फैक्टर मेथड होगी, इस पर गियर ठीक से समझ में आ जाए तो हेलिकल गियर बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी फैक्टर मेथड में कैसे निकालते थे? PT CS by CV is अर्ली बकिंघम मेथड,
अर्ली बकिंघम मेथड के अकॉर्डिंग ई इफेक्टिव का जो फॉर्मूला था दैट वाज ETCS प्लस ETCS प्लस ED. This ED is given by अर्ली बकिंघम. इस BD के लिए इस पर गियर में क्या फॉर्मूला था? इस BD के लिए इस पर गियर में था 21B CB plus divided by 21B plus under CB plus 20. इसे हम कहते थे इंक्रीमेंटल डायनामिक लोड. इस पर गियर, तो ये इस पर गियर का फॉर्मूला था PD के लिए. लेकिन अब टीथ हो गए इंक्लाइन. इंक्लाइन होने से कौन सा एंगल आ गया? साई. तो इस फॉर्मूले में कहीं कहीं साई जरूर आएगा हेलिकल गियर के लिए. इस पर गियर के लिए देयर इज नो साइन, बट फॉर हेलिकल गियर देयर विल बी साई टर्म. तो मैं यहां एक्चुअल फॉर्मूला लिख रहा हूं वेयर PD इक्वल टू हेलिकल के लिए, है ना. फॉर्मूला बिल्कुल ही रहेगा 21B CB प्लस PD cos स्क्वायर साई divided by 21B plus under root CEB plus PD. यदि साइड टर्म आ गया तो हेलिकल के लिए टीथ एंगल है ना, और साइड टर्म यदि नहीं है तो इस पर फॉर्मूले कैसे हैं, केवल यहाँ पे क्या बढ़ गया cos स्क्वायर साइड टर्म बढ़ गया. कुछ थोड़ी सी इसमें एरर है, सही करते हैं. फिर से लिखिएगा CB cos स्क्वायर साई प्लस PD इनटू cos साई. दो जगह साई है, एक जगह cos स्क्वायर साई CB के साथ और एक ब्रैकेट के बाहर cos साई. ठीक है, ऐसे लिखिए. और नीचे जो रूट वाला पार्ट है वो बिल्कुल इसी की तरह रहता है. तो cos स्क्वायर साई प्लस PD ये वाला पार्ट रूट में एज इट इज आता है. इस पर में भी आता है. यस सर. और हेलिकल. So this is something about the dynamic load calculation. Beam strength we have done, wear strength we have done, virtual teeth we have done. So all theory of the helical gear is complete. ठीक है, force calculation we have done. Now the remaining part is to do one numerical of the helical gear. After that we will move to the bevel gear. तो एक numerical लिख लीजिए, वो इन्हीं फॉर्मूलों से होगा बिल्कुल उसी तरह. नेक्स्ट क्लास में करें.